السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، ہم لوگ اردو قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اردو قواعد اردو امتحانات کے جو ہے پرچہ میں آتا رہتا ہے۔ یہ اردو قواعد کا تیاری ہو، BPSC تیاری ہو، یا جھارکھنڈ کا پریچھا ہو، یا انڈیا کا کوئی بھی اردو کا پریچھا ہو، اس کے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 میں ہے، علم بیان کی روح سے جملہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، کس کی مثال ہے؟ علم بیان جو ہے ایک ہوتا ہے تو اس کے روح سے علی شیر کی طرح بہادر ہے، کس کی مثال ہے؟ A تشبیہ کی، B استعارہ کی، C کنایہ کی، D مجاز مرسل کی۔ تو علی شیر کی طرح بہادر ہے، کس کی مثال ہے؟ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ تو علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں 4 قسموں میں سے کس کی قسم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا A تشبیہ۔ تشبیہ کی ایک قسم ہے۔ یہ صحیح ہو جائے گا تشبیہ۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں علی کو جو ہے شیر کی طرح بہادر قرار دیا جا رہا ہے، تو اس میں تشبیہ کا استعارہ ہے۔ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، اسی طرح علی کو شیر کی بہادری میں شرکت ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جو ہے علی بھی شیر کی طرح بہادر ہے۔ چلتے ہیں 2 نمبر پہ۔ جملہ ماں نے کہا میرا چاند آیا۔ ماں نے کہا میرا چاند آیا میں لفظ چاند علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ A تضاد، B استعارہ، C حسن تعلیل، D تشبیہ۔ ماں نے کہا میرا چاند آیا، تو لفظ چاند علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہے استعارہ ہوگا، B صحیح ہو جائے گا آپ کا، جو ہے استعارہ ہوگا، B صحیح ہو جائے گا۔ استعارہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی کے مشابہ دیے بغیر اس کو ڈائریکٹ کہہ دینا، جیسے کہ چاند، لڑکا چاند تو نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ چاند کہہ دینا، یہ ہے، اسی کو استعارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ علی شیر کی طرح بہادر ہے، بلکہ یہ نہ کہہ کے علی شیر ہے کہہ دیا جائے، یہ بھی استعارہ ہے۔ تو ڈائریکٹ کسی کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دینا، یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 میں چلتے ہیں۔ وہ زمانہ ماضی جس میں کام کا ہونا دور کے گزرے ہوئے وقت میں پایا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ وہ زمانہ ماضی جس میں کام کا ہونا دور کے گزرے ہوئے وقت میں پایا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ A ماضی استمراری، B ماضی شکیہ، C ماضی بعید، D ماضی قریب۔ تو وہ زمانہ جس میں کام کا ہونا دور کے گزرے ہوئے وقت میں پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ماضی بعید۔ ماضی بعید آپ کا جو ہے صحیح ہو جائے گا C آپشن۔ یہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، کون کون ہے؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ یا ماضی شکیہ کو ماضی احتمالی کا ماضی شکیہ، اور ماضی ناتمام۔
माजी इस्तिमरा, माजी शकिया और माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली और माजी शर्तिया और माजी शर्तिया। तो ये जो है 6 किस्में हैं माजी की। माजी शर्तिया, माजी तमन्नाई तो है, इसको 6 किस्में हैं। तो 6 किस्में में से जिसमें दूर के गुजरे हुए जमाने में पाया जाए कोई काम, उसी को माजी बाईद कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 4 में लफ्ज अंजुमन कवाइद की रूह से इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? लफ्ज अंजुमन कवाइद की रूह से इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? ए इसमें मुसव्वर है, बी इसमें जवा है, सी इसमें आला, डी इसमें जात। तो कवाइद की रूह से अंजुमन किसकी मिसाल है? इसमें मुसव्वर की मिसाल है या इसमें आला की मिसाल है, इसमें जात की मिसाल है? तो इसमें जात कहते हैं कि किसी का नाम हो, जैसे जैद, खालिद, हामिद या गंगा, जमुना, इसमें जात है। दिल्ली, तो इसको इसमें जात के। इसमें आला कहते हैं कि जिससे किसी काम का, जो काम के लिए औजार हो, जैसे कलम, कापी, इसी तरह हथौड़ी, कैंची, ये सब जो है औजार जो होते हैं किसी काम को अंजाम देने के लिए, उसको इसमें आला कहते हैं। इसमें मुसव्वर कहते हैं जिसमें छोटापन पाया जाए, लेकिन अंजुमन में छोटापन तो पाया नहीं जा रहा है। तो कवाइद के विषय इसमें नकीरा की कौन सी किस्म है? ये इसमें जमा है, बी इसका सही हो जाएगा। कवाइद की रूह से अंजुमन है, इसमें जमा है, इसमें जमा है। इसमें अंजुमन वाहिद ही लफ्ज है, लेकिन इसमें अंजुमन में लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उसको कहते हैं, इसमें जमा कहते हैं। वाहिद है लेकिन जमा का माना दे रहा है, तो ऐसे लफ्ज को इसमें जमा कहा जाता है। चलते हैं 5 नंबर पर। वो इसमें जो नर और मादा दोनों के लिए यकसा बोला जाए उसे कवाइद की में क्या कहते हैं? वो इसमें जो नर और मादा दोनों के लिए यकसा बोला जाए उसे कवाइद में क्या कहते हैं? ए मुज़क्कर गैर हकीकी, बी इसमें जिनसे मुश्तरक, बी मुज़क्कर हकीकी, डी मुअन्नस क़यासी। ऐसा इसम है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको इसमें जिनसे मुश्तरक कहते हैं, उसको इसमें जिनसे मुश्तरक कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जैसे कि मुसाफिर, अगर औरत सफर करने वाली हो तो उसको भी मुसाफिर कहेंगे, मर्द सफर करने वाले तो उसको भी मुसाफिर कहेंगे। तो इसको इसमें जिन्स कहते हैं। ऐसा इसमें जो नर और मादा यानी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है तो उसको इसमें जिन्स कहते हैं। इसी तरह इसके जिन्स या इसमें आम भी कहते हैं, इसमें जिन्स मुश्तरक या इसमें आम कहते हैं। इसी तरह जैसे कि प्रधानमंत्री औरत है तो उसको भी प्रधानमंत्री या वजीर, उर्दू में वजीर आजम कहा जाएगा, या मर्द प्रधानमंत्री है तो उसको भी वजीर आजम कहा जाएगा। तो औरत हो या मर्द हो प्रधानमंत्री, उसको वजीर आजम ही कहा जाएगा। तो वजीर आजम का लफ्ज जो है ये क्या है? इसमें आम है या इसमें जिनसे मुश्तरक है। इसी तरह डॉक्टर है, औरत डॉक्टर है तो भी डॉक्टर कहलाएगी, मर्द डॉक्टर है तो भी डॉक्टर, दोनों के लिए डॉक्टर ही लफ्ज आता है। तो इसमें आम है, इसमें जिन्स मुश्तरक है, इसको कहते हैं। 6 में दर्ज झैल में से इमला और कवायद के लिहाज से दुरुस्त जुमला कौन सा है? दर्ज झैल में से इमला और कवायद के लिहाज से दुरुस्त जुमला कौन सा है? ए बराहे मेहरबानी खत लिखना, बी बराहे मेहरबानी करके खत लिखना, सी बराए मेहरबानी करके खत लिखना, डी बराए मेहरबानी करके खत लिखना। तो इसमें दुरुस्त जुमला कौन सा हो जाएगा? तो बराए मेहरबानी करके खत लिखिएगा, ये सही नहीं होगा, डी। इसी तरह बराए मेहरबानी करके खत लिखना, ये भी सही नहीं होगा, बल्कि ए सही हो जाएगा ऑप्शन, बराहे मेहरबानी खत लिखना।
यानी मेहरबानी के रास्ते से खत लिखना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 7 में है, वो मुरक्कब जो इस्म और फेले नाकिस से मिलकर बने क्या कहलाता है? वो मुरक्कब जो इस्म और फेले नाकिस से मिलकर बने क्या कहलाता है? ए मुरक्कब आददी, ई मुरक्कब तमीज़ी, सी मुरक्कब इस्मी, डी मुरक्कब फ़िअली। जो है मुरक्कब है लेकिन इस्म और फेल नाकिस से मिलकर बने क्या कहलाता है? तो इसको मुरक्कब इस्मी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुरक्कब इस्मी। जैसे जैद बीमार है, तो जैद जो है ये मुब्तदा हो जाएगा, बीमार है ये खबर हो जाएगा। तो है ये है फेल नाकिस है, तो इसको मुरक्कब इस्मी कहा जाता है। मुरक्कब इस्मी या जुमला इस्मिया भी कहा जाता है। मुरक्कब इस्मी या जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे खालिद आया, जैसे खालिद वो खालिद था, जैसे वो खालिद था, ये भी मुरक्कब इस्मी की मिसाल है। चलते हैं 8 नंबर पे, कलाम में किसी तारीखी वाक़े, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? कलाम में किसी तारीखी वाक़े, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? ए इल्हाम, बी तलमीह, सी तदनीस, डी मुबालगा। तो किसी तारीखी वाक़या की तरफ कलाम है, जुमला है, उसमें तारीखी वाक़या, कुरान आयत या हदीस की तरफ इशारा किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको तलमीह कहते हैं। बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ कहते हैं कि कोई कलाम हो उसमें जो है मुबहम में आदमी पड़ जाए, ये बात सही है, करीब वाली या दूर वाली। तजवीज़ कहते हैं कि जिसमें किसी हर्फ की कमी बेशी हो। मुबालगा कहते हैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इसको मुबालगा कहा जाता है। नंबर 9 में है, वो इसमें नकिरा जो किसी चीज़ की मिक़दार, नाप या तौल को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? वो इसमें नकिरा जो किसी चीज़ की नाप, मिक़दार, तौल को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? ए इसमें मिक़दारी, बी इसमें इस्तिफ़हाम, सी इसमें ज़ात, सिफ़त ज़ाती, डी इसमें आददी। तो उसको जो है जिसमें नाप तौल या मिक़दार की बात हो उसको इसमें मिक़दारी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें मिक़दारी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर में है और आज का आखिरी सवाल, लफ्ज़ खुश अखलाक में खुश कवायद की रूह से क्या है? ए इसमें मफ़ऊल, बी लाहिक़ा, सी साबिक़ा, डी हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल। तो लफ्ज़ खुश अखलाक में खुश कवायद की रूह से ये साबिक़ा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साबिक़ा। साबिक़ा कहते हैं कि कोई इस्म है और उसके शुरू में कोई इस्म लगाकर, कोई लफ्ज़ लगाकर उसके माना में को तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए, दूसरा माना देने लगे तो उसको साबिक़ा कहते हैं। अगर इस्म के आखिर में लगाकर कोई लफ्ज़ बनाया जाए, कोई इस्म है उसके आखिर में कोई लफ्ज़ बढ़ा दिया जाए और माना में तब्दीली आ जाए तो उसको लाहिक़ा कहते हैं। तो इस्म के शुरू में कोई लफ्ज़ बनाकर उसके माना में तब्दीली कर दी जाए तो उसको साबिक़ा, इस्म के आखिर में कोई लफ्ज़ बढ़ाकर माना में तब्दील की जाए तो उसको लाहिक़ा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए 10 सवाल, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।